विकास रंजन सर का नाम आपने टॉपर्स की जुबान से कई बार सुना होगा। विकास रंजन सर, विकास रंजन सर, विकास रंजन पॉइंट ऑफ विकास रंजन सर की विकास रंजन सर की विकास सर From Vikas Ranjan, I विकास रंजन सर फॉर गिविंग मी डायरेक्शन। उनकी सोशियोलॉजी गाइडेंस ने अनेक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सपनों को हकीकत में बदला है। अभी तक चाहे बात हो ऑफलाइन क्लासेस या रिकॉर्डेड सेशन की, उन्होंने हर फॉर्मेट में एक्सीलेंस डिलीवर किया है और इसी वजह से कई टॉपर्स उनके स्टूडेंट्स रहे हैं। लेकिन अब वक्त है एक नए चैप्टर का। स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड को ध्यान में रखते हुए ट्रायम्फ आईएएस पहली बार लेकर आ रहा है एक एक्सक्लूसिव लाइव बैच, सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। ये बैच होगा पूरी तरह से लाइव। यहाँ मिलेगा आपको डेली रियल टाइम इंटरेक्शन और विकास सर से डायरेक्ट मेंटरशिप। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट, ये बैच आपकी प्रिपरेशन में एक नई जान डाल सकता है और एक सच्चा गेम चेंजर हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए तुरंत विजिट करें ट्रायम्फ आईएएस वेबसाइट और नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। डोंट वेट नाउ, लेट्स गो लाइव विथ सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। Hi everyone, I am Mudita Bansal, AIR 44, UPSC CSE 2024. I scored 210 in my personal interview. Today, I just want to share some of the things जो मुझे लगता है कि सही गई and some things that you think might work. Interview is not a one but a two-stage process. आप interview सिर्फ जब interview दे के आते हैं उसमें नहीं होता है, but 50% of your interview is decided जब आप DAF भर रहे होते हैं. So please don't undermine the importance of DAF. And when I say DAF भर रहे होते हैं, it means what are the kind of keywords you're giving the interviewer and how interesting they are. Interesting doesn't mean कि आपने दुनिया से बाहर का कोई बात कर दिया, but interesting कि आपने ऐसा किया है, ऐसा क्या किया है जो फ्यूचर में एक as a civil servant government utilize कर पाएगी. For example, I had worked in medical education as a part of a BCG project. BCG is the company that I have been working for since I joined college, since I graduated from college. And there's no direct place जहाँ पे मैं वो अपना project mention कर सकती थी. या फिर I have worked in public education as a part of my BCG journey. But सिर्फ BCG लिखना कि हाँ मैंने work ex किया है, इतना strong keyword नहीं होता. So there is a position of responsibility column wherein I was also the lead field researcher for that project because I was the lead manager. So I clearly wrote that I was the lead field researcher for a medical education project with BCG. या फिर मेरे public education के project के लिए during that timeline I was awarded and honored by BCG for creating a change. So I clearly wrote कि in my award कि I was awarded for this project. Because public education, medical education, healthcare, these are the things as an administrator आप करेंगे. तो I gave them such strong keywords कि हाँ this girl does not have any medical education background, तो इसने medical ed में काम कैसे किया है. तो आप अपना DAF जब क्रिएट कर रहे हैं, इससे स्किलफुली उसको लिखिए, उसको रिव्यू कीजिए, दूसरों से रिव्यू करवाइए टू शो समथिंग दैट्स इंटरेस्टिंग. आप अपने हॉबीज़ में क्रिएटिव हो सकते हैं. जैसे आई रोट Formula 1 एंड आई वॉज इंटरव्यूड फॉर Formula 1 क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग था. इट वॉज नॉट like some other sports that students often write. So make your DAF interesting, make your DAF, and for example my second hobby was solo traveling. अब मैंने इसलिए ये लिखा था ताकि मैं उनको दिखा सकूं कि one, I have obviously solo traveled a lot across different countries, but two, at the same time I wanted to show कि मैं independent decision making कर सकती हूँ. I am an independent person, I am strong, I am agile, I am quick on my feet. Because these are the qualities a solo traveler should have. तो आप इस तरह से बनाइए ताकि हर चीज़ को देख के लगे कि हाँ you are just so much more suited for a job that you're getting into. That's one. Second is जब आप DAF बना के सबमिट कर देते हैं तो आपको दो चीज़ें प्रिपेयर करना है. One is आपका DAF, second is आपका current affairs. See there is a big element of luck and fate that day. आपको कौन सा बोर्ड मिलता है, किस टाइम मिलता है, क्या लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाता है. बट यू कैन जस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, राइट. तो आप अपना DAF जो आपने कीवर्ड्स लिखे हैं आप उसके जितने डायमेंशंस इमेजिन कर सकते हैं, प्लीज़ आप उतने डायमेंशंस इमेजिन कीजिए. ChatGPT का हेल्प लीजिए. there are coaching institutes which help in creating detailed DAF questionnaires. आप उनका हेल्प ले सकते हैं. and start thinking, writing. past और ना ट्रांसक्रिप्ट्स भी आते हैं, उसका कंपाइलेशन भी आता है. go and search for that specific keyword. जैसे मेरा Formula 1 था तो I searched for Formula 1 over and over across different transcripts और मैं देखती कि किस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग पे आता है. सो दैट आई ऑब्वियसली नो एटलीस्ट दोज आंसर्स प्लस सम एडिशनल थिंग्स जैसे जो बेसिक्स हैं, ड्राइवर्स, पास्ट ड्राइवर्स, प्रेजेंट ड्राइवर्स एटसेट्रा, एंड दैट आई यूज्ड टू डू फॉर एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल मेडिकल एजुकेशन, वन थिंग इज़ मेरा प्रोजेक्ट, उसमें मैंने क्या किया उसके पास पूरा डिटेल होना चाहिए.
बट दैट ऑल्सो मीन्स इट ओपन्स अप एज अ टॉपिक फॉर माई कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन. तो अगर मैं मेडिकल एजुकेशन में उस टाइम पे कैलकटा गैंग रेप केस हुआ था, कैलकटा रेप केस हुआ था लास्ट ईयर इन अ मेडिकल कॉलेज. सो दैट ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ माई प्रिपरेशन कि हाँ उस पर मुझसे पूछ सकते हैं और उससे वो वुमेन सेफ्टी पे जा सकते हैं. तो इस तरह से आपको लिंकेजेस ढूंढने पड़ेंगे कि हाँ यूपीएससी किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है. वन, एम आई गिविंग देम एक स्टार्टिंग पॉइंट. सो यू शुड बी ओपन टू अंडरस्टैंडिंग कि यूपीएससी आपसे डायरेक्टली क्या पूछ सकता है, आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछ सकता है, उससे रिलेटेड जो कंटेम्प्रेरी डिस्कशंस हो रही हैं वो क्या पूछ सकता है. बिकॉज दैट इज वॉट इज प्रिपेयरिंग अ कीवर्ड. इट्स नॉट जस्ट कि मैंने क्या किया दैट्स इट, वहीं पर रुक जाएंगे, वो वहाँ पे नहीं रुकेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल जब मैंने पब्लिक एजुकेशन मेंशन किया हुआ था अपने डैफ में, आई हैड डन अ प्रोजेक्ट. दे आस्क्ड मी आपने पब्लिक एजुकेशन में क्या किया. दैट वाज अ 1 मिनट कॉन्वर्सेशन. बट उसके बाद में दे केप्ट आस्किंग बट अच्छा आपने पब्लिक एजुकेशन, आपको लगता है इंडिया का चेंज हो गया है, आपको लगता है कि पब्लिक एजुकेशन में अभी भी गैप्स हैं, आप प्राइवेट स्कूल से क्यों पढ़ रहे हो, आपने पब्लिक एजुकेशन क्यों नहीं किया है. सो इस तरह के क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाते हैं. एंड बी ऑनेस्ट, लाइक आई जेन्युइनली टोल्ड देम कि सब मैम उस टाइम पे माई पेरेंट्स वर लुकिंग आउट फॉर मी and they decided what they thought was best because उस time public education had a certain kind of image. But over years government ने इतने efforts किए such as model schools, exemplar schools as well as the new education policy, जिसकी वजह से अब if my parents have to put me in the school, I'm sure they would consider public education as an equal option. That is how your answers should be. The third thing that I used to do was actually prepare for my interview. I think with my work experience anyway, I have a decent communication skill. But उसको और रिफाइन करने के लिए, क्योंकि आप जब आंसर देते हैं ना आपको एक स्पेसिफिक तरीके से आंसर देना चाहिए. यू डोंट, इट्स नॉट अ मेन्स आंसर. प्लीज़ 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 रिमेंबर दैट दिस इज़ नॉट अ मेन्स आंसर, इट्स अ कॉन्वर्सेशन. तो ऐसा नहीं कि मेरे पास एक इंट्रो होगा, 5 पॉइंट्स होंगे और फिर मैं कंक्लूजन दूंगी, ऐसा नहीं है. अगर एक क्वेश्चन पूछा है डायरेक्टली आंसर दीजिए और उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि हमारा दिमाग कितना मीन्स कंडीशनड हो जाता है कि वो बहुत मुश्किल है वो साइकिल ब्रेक करना. तो इसके लिए मैंने बिटवीन माई मेंस रिज़ल्ट एंड माई इंटरव्यू, जब मेरा मेन इंटरव्यू का डेट आया, मैंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया 6 लोग का जिनका सिमिलर डेट्स में इंटरव्यू था. सो माई इंटरव्यू वॉज ऑन 8 फरवरी. 31 जैन से लेके 15 फरवरी तक जितने बच्चों का इंटरव्यू था उसमें से आई आइडेंटिफाइड 6 लोग जो एक्चुअल में कमिटेड है. एंड रोज 1 to 1.5 आवर्स वी यूज्ड टू डू मॉक सिमुलेशन ऑफ इंटरव्यू फॉर एवरी पर्सन. तो 5 लोग इंटरव्यूअर्स बनते थे विच इज़ योर पैनल, एक इंसान रिस्पॉन्डर बनता था विच इज़ योर इंटरव्यूअरी, और हर इंसान उस बच्चे से मतलब उस एस्पिरेंट से 2 क्वेश्चंस पूछता था एवरी डे. इट कैन बी फ्रॉम एनी टॉपिक, बिकॉज इंटरव्यू बोर्ड भी आपको किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेगा. वो डैफ रिलेटेड नहीं होते थे, वो करंट अफेयर्स रिलेटेड होते थे, बट हम उससे इसलिए पूछते होते थे. एंड आफ्टर ऑल 5 पीपल हैड आस्क्ड क्वेश्चंस, अब उनको फीडबैक देते थे कि ये अच्छा था, ये नहीं था. एंड वी यूज्ड टू डिस्कस कि हाँ इस टॉपिक में ये पॉइंट्स ऐड हो सकते थे, ये पॉइंट्स सब्ट्रैक्ट हो सकते थे, और ये हम रोज करते थे. इट यूज्ड टू टेक अस ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स, बट आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट fruitful unproductive exercises because most of the people firstly in that interview group cleared their exam. A lot of them first attempters, and सबका score almost interview में 180 plus रहा है. So I'm sure it helped. Fourth was how do you prepare your current affairs? See, there are a lot of coaching institutes जहाँ पे आप current affairs का classes ले सकते हैं. I was personally enrolled in Next IAS का IGP program. I found it useful because there were विभास सर का classes, दिपिन सर का classes, जो कि बहुत short में जो most important topics हैं उस पे different dimensions and different points cover करते थे. I used to make my own notes और फिर मैं उसको revise करती थी. So I would suggest if you have the financial capacity you can go ahead with it. उनके mock interviews भी बहुत अच्छे हैं. This takes me to my last part which is your mock interviews. How many to give, how many not to give, how much feedback to consider. I gave 5 to 6 interviews across Next IAS. उनका faculty और main panel mock दोनों दिया है मैंने. I gave सत्यम सर का Understand UPSC, संकल्प का mock. I also attended PWIS and Unacademy IAS के mocks. I personally found IGP and Sankalp to be extremely useful because Sankalp stimulates real time, बहुत छोटे से रूम में, not a formal setting. And Next IAS का feedback was actually very actionable. My first interview was PWIS. First mock interview was PWIS. वहाँ पे also the panel I found really useful because उन्होंने मुझे सिखाया कि आपको अपने आंसर में डिफरेंट डायमेंशंस सोचने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर दिस वन क्वेश्चन
it was around what is the importance of peninsular India. I think that, or like Indian Ocean, something on those lines. And I just said कि हाँ सर ट्रेड के लिए है, आपके पास कोस्टल है तो टूरिज्म है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो मैंने इसमें 3-4-5 डायमेंशंस बोले and I thought कि बहुत सफिशिएंट है. But then I realized कि all the sir mentioned that all these dimensions are economy related. It's nothing different dimension. For example, हमारा पूरा हिस्ट्री ही उधर से लिखा गया है बिकॉज दैट इज़ वेयर वास्को ड गामा केम फॉर द फर्स्ट टाइम. और इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मानसून. अगर पेनिनसुलर इंडिया नहीं होगा तो इंडिया में मानसून्स नहीं होगा. देयर आर डायमेंशंस ऑफ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री विच आई डेंट नो कि हम अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं. तो आप प्लीज़ इस तरह से डिफरेंट डायमेंशंस कवर कीजिए आंसर में. इट विल हेल्प यू स्कोर मोर. And it's okay to take time before you answer. You can take a couple of seconds, you can ask for time and then respond. But please make sure that you're calm, you're confident. Please don't get scared, and please be honest. If you don't know something, say you don't know something. I have actually said that in my main interview that I don't know this. Please don't bluff, because if you bluff, you lose credibility. If you can bluff now, if you can lie now, they will think you can lie when you're an administrator. And that is when people start doing corruption. Please don't lie. Be honest. If you know, you know. You don't know, you don't know. And just have faith and let destiny decide the rest. I hope you have a good interview. Very well wishes if you've cleared your mains. If you haven't, please don't be disheartened. Prepare for your mains next time. And for anyone who is preparing for interview, feel free to reach out to me for any guidance that you might need in the future. I'm glad that DKT is taking this kind of an initiative, because I hope it reaches aspirants who are actually looking for it, and it helps out in the best ways. Thank you so much.